So we'll continue the lecture of calorimetry 2. First हो चुका है, second lecture. So in the last lecture, we finished the which part? Latent heat part. And there were three types of latent heat: vaporization, fusion, and sublimation. Sublimation. Now there are certain values which you must remember. So latent heat of evaporation of the steam to water to steam is how much? 540 calories. So this for water, not 100 at any temperature. Water to steam, I would say. Just say water to steam, and this is fixed. And you may convert this into joule. Roughly, you can say 4.2 joule, and 1 gram is minus 3 kilogram. So that will give you 2.26 10 power 6 joule per kg, right? ALF for water ice, 80 calories per gram. it is only 80 calorie per gram, which will give you, I think, 3.36 10 power 5 joule per kg. You can see there's a factor of 10 actually. So 10 times more actually, roughly you can see, but it's not 10 times. There is other number also. Okay. And the sublimation, no need to remember because we don't know. What else you need to know is uh, is specific heat capacity of three things. So is specific heat capacities. So for water, now what you need to also remember that is specific heat capacity we define for one phase. During phase change, it becomes infinite. Why? As per definition, right? Because during phase change, temperature will not change, right? Yes. So delta T is 0, right? Hmm. So it means its specific heat capacity is infinite. It means you can't change the temperature. That's the meaning, right? So for water, it's very easy to remember 1 calorie per gram per degree Celsius. For steam, it is roughly 0.5 calorie. For ice, these three values Ice also 0.5, sir. 0.5. So ice and steam, they have roughly same, not exactly, but most of the calculation when we do, we take these values. So if you find online these values, you will find some difference actually. For solving JE questions, either they should mention, but if it is not mentioned, these are the values you must take. Yes, sir. Now, things to remember again as a concept. Because the specific heat capacity we define as dq by m dt. Therefore, during phase change, dt is 0. And if I make this term 0, then this will become undefined. Undefined. Yeah. So we assume the temperature change is 0. So this implies S becomes, let's call it infinite.
because here it makes sense. So you need infinite energy to change the temperature, which is as good as you can't change the temperature. That's the meaning, right? So during phase change, during phase change, what happens? We have infinite specific heat capacity. Now, from the context of thermodynamics, I'll talk about two things. We talk about types of wall in context of thermodynamics. Although I will discuss there also, but because we are here, so let's take one shot at this also. There are two types of wall. One is called adiabatic wall. And if if a wall is said to be adiabatic, if it do not allow the heat to Heat cross. flow. So no heat can cross a theoretical adiabatic wall. Technically, it is impossible to create 100% adiabatic. That's why I'm saying a theoretical. Getting it? Yes, sir. So if a wall is adiabatic, then heat cannot cross. This is a symbolic diagram, understand, right? So it will come back, right? I hope clear. Yes, sir. For such a wall, the specific heat capacity is again infinite. Now think about it. What does it mean? So if a wall separating a gas and the surrounding with this wall, the energy cannot go to the other side because you need infinite energy to change the temperature of the wall first. Unless the wall temperature will not change, it will not change the temperature of the gas in contact, right? Getting it? Yes, sir. You take a pan and put some water and put that pan on the stove. The water will get the heat from the pan bottom, not from the gas, right? Yes, sir. Gas will give energy to the pan only, not to the water. And pan will give to the water, right? Hmm. But if the pan temperature change is impossible, what do you think? What will happen to water? Will it raise its temperature? No. And this is what I'm saying, that if the wall is adiabatic, then its specific heat capacity should be infinite, right? Yes or no? Yes, sir. Gurgun, clear? And for diathermic wall, you know what is meaning of diathermic? Heat flow is allowed. Yeah, actually the word dia in Greek means through which heat can pass. Okay. Without any obstruction. If a wall is diathermic, it means in no time it will let the heat to go from one side to the other side. It means the specific heat capacity of the diathermic wall is tending to zero. So to raise the temperature of the wall, we need almost zero energy. So all of the energy on this side will go on the other side. Okay. Imagine you put your hand above the burning gas flame, and there is a gap of air between the you and the flame. So you will get the burning sensation in no time. Why? Because air will take almost no energy and will let the energy to go directly from flame to your hand. That invisible wall of air is example of diathermic wall. Don't do this, and don't put your hand on the other side of diathermic wall and supply the heat from one side.
dangerous. Mm. But you will come to know something called there is a term in liver frost effect. Liver frost. Just a minute. Leiden frost effect. What is that, sir? Very interesting. You can actually touch with your hand molten lava. Nothing will happen. It's called. Don't do this again unnecessarily. I will be put in jail. You can watch videos. So what happens that for a very heated object, they create the layer of air above it. So even when you hit, you will hit the air actually, not the object. So you will not get burned, which is interesting. In a way, So, the air will act as the adiabatic wall. That is interesting example. Now imagine the same air will become adiabatic wall in this case, and as I said, it could act as a diathermic also. Okay. वो कंट्रोल कर सकते हैं सर? अभी करना मत, ठीक है? घर में ऐसा नहीं मतलब when it is diabetic or when it is diathermic. नहीं, मतलब वो तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट. अगर बहुत ही हीटेड ऑब्जेक्ट है तो वो जनरली चूंकि एयर सप्लाई इज इनफाइनाइट, तो इट विल क्रिएट अ मूविंग एयर अपवर्ड, राइट? हाँ. तो वो एयर हमेशा ऊपर जाएगा तो इट विल हिट द लिक्विड. तो लिक्विड विल लाइक सस्पेंडेड बाय द एयर ओनली ना, एयर कोलिजन विद एयर. अच्छा, राइट सर. तो इन अ वे वहां पे कोलिजन हो रहा है एक्चुअली. और चूंकि एयर की डेंसिटी कम है तो वो बर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा. मान लो कि अगर एक हाई टेम्परेचर एयर मॉलिक्यूल हिट भी कर दिया, लेकिन जहां 100 मारना था वहां पे 2-4 लोगों ने मारा, तो बच जाओगे. कि डेंसिटी बढ़ा दे तो वो भी जला देगा. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या ऐसा है. पढ़ना है इस बारे में बहुत सारी जरूरत नहीं. आगे बढ़ते हैं. मैं ऐसे ही बता रहा था कि तुम लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाता कुछ कंपलसरी नहीं है, जेई के लिए तो नहीं है. नेक्स्ट. मान लग रहे हैं घर में बना रहे हैं ऐसे 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 कुछ कांड कर दिया, हाथ तो जल से अ, कढ़ाई कलछी जो है उड़ते हुए आ रहा है अहमदाबाद से मेरे घर तक. इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब एक्सपेरिमेंट अपने रिस्क पे करना है, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लेम कि मैंने ऐसे कुछ पढ़ा है. वीवर फॉर्म साइन करवा दो सर. एग्रीमेंट करवा लेंगे इसमें. आगे बढ़ते हैं. आपकी मौत होती है तो मैं गुनहगार नहीं होगा. और तुम चाहते हो कि मतलब मैं निपट जाऊँ, नहीं ऐसा? मतलब सही है, ऐसे ऐसे बच्चों को फिर क्यों पढ़ाए टीचर? बुरा नहीं पढ़ा. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये था हमारा लेटेंट हीट. और हम आते हैं अब कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातों पे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम समझते हैं तो बहुत फायदा होता है इसका. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? The point at which the pressure of a substance equals the vapor pressure of a liquid equals the atmospheric pressure. So it is not a point, it's a temperature. Temperature, right? Sorry. Huh. So of course it's a temperature at which the vapor pressure. Now every liquid by default will create the vapor. अब ये इंटरेस्टिंग है.
और वेपर का फॉर्मेशन नेचुरल फिनोमेना है। अब क्यों नेचुरल समझते हैं हम लोग, क्योंकि लिक्विड हमेशा लिक्विड नहीं हो सकता। लिक्विड हम बल्क में कहते हैं, सरफेस पे चीजें बदलती हैं। तो किसी लिक्विड को जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी फेज में है। तुमने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में। और मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन में ही वो कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सरफेस मॉलिक्यूल को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए कहीं और से, तो वो सरफेस छोड़ के चलाता है, उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। अब चूंकि सरफेस पे होता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सरफेस नहीं, हर एक बल्क। मॉलिक्यूल पूरा बल्क रेडी है जाने के लिए, लेकिन जाएगा एक के बाद एक, यानी कि वो इंटर्न जाएगा। पहले मैं जाऊंगा, फिर मेरे नीचे का जो लेयर हो जाएगा, फिर उसके लेकिन लेकिन सब रेडी है मेंटली, जाना सबको। ऐसे ये हो गया कि एयरपोर्ट पे जो भी बंदा क्यू में है, सबको फ्लाइट से जाना है। क्योंकि अगर क्यू में है अंदर, तो उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाया होगा, सिक्योरिटी चेक इन किया होगा, यानी कि वो एलिजिबल है जाने के लिए। ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जाएगा एक, ऐसा नहीं कि सब कूद के एक, ऐसा तो होगा नहीं, क्यू में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जाएगा सब। ठीक है। उस तरीके से इवेपोरेशन की बस खास बात क्या है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो मान लो कि तुम ड्रोन, अपना प्राइवेट ड्रोन चला रहे हो और बंदा जो है कूद के लटक गया, तो वो घूम के चला जाए, घूम जाएगा ना, वो भी तो घूम लेगा ऐसे प्लेन में, फालतू का प्लेन। तो वो बॉइलिंग नहीं है, वहां पे वो कुछ बंदे रेडी थे जो कूद के पहुंच गए। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल पे हो, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। जिसमें पूरा बल्क तैयार हो, लेकिन जाएगा तो भाई एक के बाद दूसरा जाएगा ना, एक साथ तो निकल नहीं सकता सब, उसे कहते हैं बॉइलिंग। वेपर बनने की टेंडेंसी सब में होती है, लेकिन एक खास टेम्परेचर पे वो टेंडेंसी सरफेस में नहीं, पूरे बल्क में हुआ थी। ठीक है। उस मोमेंट पे होता क्या है कि वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर को पुश कर सकता है। अब एटमॉस्फेयर भी तो खुद एयर है। एटमॉस्फेयर होता क्या है, वो भी तो खुद एयर है, और ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर इंटैक्ट है। तो इन अ वे उस एयर को पुश करके जाना है हमें। तो अगर पानी से निकल के एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनना है, तो मुझे इतना मजबूत होना पड़ेगा कि उस प्रेशर को मैं ओवरकम करके अंदर घुस जाऊं। समझे क्या? कुल मिला के बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। बॉइलिंग का मतलब है कि इतनी ताकत दे दो हमें कि हम एटमॉस्फेयर को उठा सके। अब जैसे जैसे हम जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे, तुम चले गए माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब जो रिमेनिंग एटमॉस्फेयर है वो तो कम हो गया। अब गाना गा रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि एटमॉस्फेयर को उठा सके। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर पतला हो जाए, तो हमें ताकत भी कम चाहिए। ताकत कम चाहिए का मतलब कि कम टेम्परेचर पे वो हम अचीव कर लेंगे। कम टेम्परेचर पे ही वो प्रेशर बन जाएगा वेपर का, जो एटमॉस्फेयर को लिफ्ट कर दे। अब इस टेक्निक से तुम सोचो कि अगर तुम ऊपर चलते चले जाओ, कितना ऊपर, जहां कोई गैस ही नहीं है, वैक्यूम में पहुंच जाओ, तो अब तो हो जाएगी मन मर्जी। मन मर्जी है भाई, किसको धक्का मारना, कोई है नहीं धक्का मारने के लिए। और सब चाहता है आजाद रहना, मुक्त रहना, फ्री रहना। तो अगर हम एटमॉस्फेयर हटा दें, तो कोई भी लिक्विड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग बात, मालूम है? अरे तुमने अगर एयर फ्री हटा, एक्सपांशन। तो पानी पानी नहीं रह सकता, क्योंकि सब वेपर बन के, कुछ वेपर बन जाएगा, कुछ आइस बन जाएगा। कुल मिला के बताता हूँ क्या होगा कि अगर तुमने एटमॉस्फेयर हटा दिया, यानी कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, तो वाटर कैन बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग 0 पे भी होता है। क्लियर है? यस। क्योंकि बस पानी होना शर्त है, लिक्विड होना चाहिए। अब लिक्विड होने के लिए 0 चाहिए। 0 से कम लिक्विड होगा नहीं। तो इसलिए बॉइलिंग कैन अकर इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर।
लेकिन ध्यान से समझना कि बॉयल होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गया। हाँ, अगर बॉइलिंग हुआ है बहुत हाई प्रेशर माहौल में तो बहुत एनर्जी रहा होगा, ये कह सकते हैं ना। तो पहाड़ों पे खाना बनाना मुश्किल हो गया क्योंकि पानी इससे पहले कि गर्म हो बॉयल हो जाता था। तो वहां बोला कि भाई ये काम नहीं चलेगा ऐसे, तो हम एक नया टेक्निक को करते हैं, डेवलप प्रेशर कुकिंग। बस बन गया प्रेशर कुकर। एक 50 ग्राम के वाल्व को लगा दो एक नोजल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सीटी। और वो वाल्व जो है उस छोटे से नोजल के ओपनिंग पे इट क्रिएट्स एडिशनल प्रेशर मोर देन 180। एक छोटे से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से mg/a प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और हमें देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल सब कुछ मैथ से ही करता हूँ। mg/a को हमें बनाना 180 मान लो। तो अगर हमें m निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 180 m a/g। हमें मास निकालना है। अब 180 में क्या होता है पास्कल में, रफली 10/5, है ना। यस सर। और g मानो 10 एरिया। अब अगर हम a को बना दें, मतलब मास अगर मान लो कि मास ले लिया हमने 50 ग्राम, ठीक है, यानी कि 5 - 2, ए कितना हो गया। और एरिया होता है पाई स्क्वायर, रफली r² मान लो। नहीं, 1 मिलीमीटर का अगर हम होल बना दें, अगर एक से ज्यादा होता है, तो सोचो कि 50 ग्राम का एक छोटा सा वाल्व जो है, इट विल बी एबल टू क्रिएट 1 atm प्रेशर रफली। तो हमें करना क्या था कि बस कुछ नहीं, नोजल बना दो जिसका रेडियस हो 1 mm का। अब सेफ्टी के लिए हमने उसका रेडियस 1 mm से थोड़ा ज्यादा बना दिया है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा 1 mm से ज्यादा होता है। इट इज स्मॉल इनफ यू कैन सी थ्रू, राइट। और छोटे से मास को रख के हमने क्या किया, एक एडिशनल प्रेशर बना दिया। अब वेपर को बाहर निकालना है तो पहले एटमॉस्फेयर को नहीं, पहले सीटी को उठाओ, यानी वाल्व को उठाओ, उठाकर बाहर निकलो। और वो वाल्व जिसे ऊपर से एटमॉस्फेयर दबा भी रहा है, तो वाल्व का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर जो कम हो चुका है उसको कंपनसेट कर देगा ये तो। और कंपनसेट ही नहीं, ज्यादा कर देगा। अब अगर प्रेशर 1.5 हो जाए तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ना पड़ेगा उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, यानी कि पानी के अंदर का जो हीट कंटेंट है वो पहले से बढ़ जाएगा। और अगर पानी के अंदर का हीट कंटेंट बढ़ गया तो उसके अंदर जो भी हम रखेंगे वो जल्दी पक जाएगा। इस तरह से हमने प्रेशर कुकिंग यूज करके खाना जल्दी पका लिया। अब पहले तो समस्या था कि हाई एल्टीट्यूड पे खाना बनना मुश्किल था, अब उसे हमने ओवरकम कर लिया। और ज्यादातर चीज में क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो प्रेशर कुकिंग ऐसा नहीं कि पढ़ के आया, उस जमाने में ये रियलाइज हो चुका था। और इसीलिए उस जमाने में तुम देखो कि जो कुकिंग का टेक्निक था वो था क्लोज्ड वेसल कुकिंग। और बिना जाने और अनजाने में वो क्लोज वेसल ने वो बाय डिफॉल्ट प्रेशर कुकिंग बना दिया था, है ना। तो ऐसे नहीं कि प्रेशर कुकर बना तब जाके बना प्रेशर कुकिंग। हमारे टाइम यस में सर। नॉर्मल वेसल पे ऊपर ढक्कन लगा के उस पे रख देते थे ईंट, वही था प्रेशर कुकर उस समय का। इतना कितना पुराना टाइम था? अरे मैं बहुत पुराना इंसान हूँ, डायनासोर के बाद मैं ही आया था एक्चुअली। फिर बाकी जो भी है, मेरे हाथों में फॉसिल है, 5,000 ईयर ओल्ड। आई एम रफली बिलियन ईयर ओल्ड। हो गया सर आज का। नहीं नहीं, भी पढ़ लो अच्छे से। अभी क्या मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि मैं बिलियन ईयर ओल्ड हूँ, तुम लोग कैसे तू सर्च करो पहले। आपकी मेरी उम्र सेम ही है तो सर। हाँ नहीं, थोड़ा सा एटम का कन्फिग्रेशन लेट से हुआ था, उम्र तो सेम ही है। बट तुम कन्फिगर लेट से हुए थे, मैं पहले कन्फिगर हो गया।
क्या हाँ, फर्क पड़ता है। सही बात। टेक्निकली वी ऑल आर इक्वली ओल्ड, और जो नहीं जन्मा है उसकी भी उतनी है जो जन्म ले चुका है। ये इंटरेस्टिंग। हम्म। ओल्डर इज द परसेप्शन। ये नहीं बाबा, फिलोसफी नहीं आते। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ। इट इज टेम्परेचर। एज तो सर बेसिकली एंट्रोपी का मेजर है अपनी हमारी बॉडी का। करेक्ट करेक्ट, कुछ समझ रहा हूँ प्लीज। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स। अब देखो, इक्वल्स हम ऐसे बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल्स सराउंडिंग प्रेशर। तो वहाँ पे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करते हैं तो फिर वो एसटीपी बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट एसटीपी। तो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो भी स्केल लेना पड़ेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि ये मैनिपुलेटिव है, ये फिक्स नहीं होता। तो बाहर का कंडीशन हम अगर बदलते हैं तो दिस पॉइंट विल ऑल्सो चेंज, दिस टेम्परेचर विल चेंज, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया सराउंडिंग प्रेशर। अब सराउंडिंग चेंज करोगे तो दैट इज इट्स वैल्यू कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग में जो होता है इवेंट, वो वही इवेंट इवापोरेशन में होता है। यानी कि मॉलिक्यूल वहां पे भी छोड़ के जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं बाहर। लेकिन दोनों का कॉज अलग अलग है। एक में सरफेस जाता है, और भी रैंडमली कोई कोई जाता है, सब नहीं आता, सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल नहीं आते। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा बल्क तैयार है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। है ना। चल रहा है कुछ मार्च चल रहा है ना, मार्चिंग चल रहा है किसी फ्रीडम फाइटर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में याद क्या रखना है कि ये वेरिएबल होता है, इसमें हम बाहर के कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि 0 डिग्री पे पानी बॉयल हो सकता है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच a substance can exist in liquid phase can boil। नहीं समझे। कोई भी सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज है, जितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन सकता है उसी टेम्परेचर पे वो वेपोराइज भी हो सकता है। अच्छा, यस सर। तो मैंने बोला कि द मिनिमम टेम्परेचर at which the phase of a substance is liquid, at the same temperature you can also vaporize or boil actually। गुनगुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया लगता है। फिर से बोलूं। Yes. चलो मैं लिख देता हूँ, बोलने से अच्छा है। पढ़ो, देखो समझ आ रहा कुछ। मतलब अगर कोई लिक्विड है तो वो उसी टेम्परेचर पे जिस पे भी है, जिस पे भी हो,
उस पर वो बॉयल भी मतलब बॉइलिंग हो सकता है। ठीक है। अब जनरली जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला, तो उसके लिए 100 डिफाइन है। कोई और लिक्विड है उसके लिए कुछ और डिफाइन है। जैसे मतलब कि इफ यू टॉक अबाउट हीलियम, अब हीलियम का बॉइलिंग ही होता है -240 के आसपास, मतलब -240 पे बॉयल होता है वो। उसके पहले वो आइस होता है, मतलब सॉलिड फेज में होता है। तो लिक्विड नहीं होता हीलियम में तो। होता है ना। आपने सॉलिड बोला। हाँ, उसके पहले, उससे नीचे जाओगे तो सॉलिड मिल जाएगा ना, मतलब कि 1 केल्विन पे। -240 के। हाँ, उसके नीचे जाए जो भी है उसका देखना पड़ेगा कितना होता है, मुझे याद नहीं है कितना, क्या याद आता है। ओ माई गॉड, -268.9, रफली क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो वो बॉयल हो जाता है। अब अगर बॉइलिंग है तो फ्रीजिंग तो उसके नीचे होगा ना। इसीलिए हीलियम के गुब्बारे कभी नहीं पिचकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ठंडा कितना होगा, -40 होगा। तो हीलियम balloon इज सो डेंजरस, यू कैन फाइंड एट ISS ऑल्सो, बट डोंट वरी, तब तक गैस इतना फैल जाएगा कि वो फट जाएगा। बट अगर टेक्निकली हम एक ऐसा बलून बनाए जिसमें गैस कितना भी एक्सपेंड हो वो फटे नहीं, देन दैट बलून कैन रीच एनी हाइट, विच इज इंटरेस्टिंग। जस्ट तो कुछ जुगाड़ करके हीलियम को फ्यूल की तरह यूज करना करने लगे तो। हाँ बोल, क्या जुगाड़ करना था तुम्हें। कुछ जुगाड़ करके हीलियम को फ्यूल की तरह यूज करने लगे तो सर। तो रॉकेट में करते हैं ना। अब रॉकेट में क्या है कि ऊपर जाकर उतना हाई प्रेशर पे उसको लिक्विफाई कर लेते हैं हम लोग, यानी कि अच्छा। एट अ टेम्परेचर विच इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो यू कैन स्टिल लिक्विफाई बाय अचीविंग सम क्रिटिकल प्रेशर। कुछ तो करते हैं वो। लेकिन पता नहीं हीलियम यूज होता है, हीलियम होता है यूज, पढ़ना पड़ेगा नासा क्या यूज करता है। नाइट्रोजन यूज करता है पता है मुझे, सर ये ऑक्सीजन यूज करता है पता है मुझे, लिक्विड ऑक्सीजन होता है यूज, लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम को पता नहीं। बट दे मिक्स, समटाइम दे मिक्स गैस विथ हीलियम टू कीप द टेम्परेचर लो, कुछ तो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट और कौन सा पढ़ाता हूँ, तो स्पेसिफिक हीट आई हैव एक्सप्लेन राइट, वो तो लास्ट क्लास में होते थे। अब हम आते हैं यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली एक मेथड ऑफ कन्वीनियंस मान लो। जैसे कि अब तुम्हें कुछ भी खरीदना हो, और अगर दुनिया में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो इश्यू होता। बार्टर सिस्टम में क्या क्या किसके बराबर क्या है वो तो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो कि 1 kg सोना का इक्वल 2 मेट्रिक टन ग्रेन होगा, या मतलब जो बताना पड़ेगा। तो हमने डिजाइन कर लिया करेंसी, और फिर हमने हर एक
प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर लिया एंड यू कैन पे इन सेम करेंसी, यानी कि करेंसी एक यूनिफॉर्मिटी है। उसी तरीके से व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट इन कैलोरीमेट्री, यानी कि जब हम मिक्सिंग ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ सब्सटेंस करते हैं, इसके तुमने कुछ वेपर को कुछ आइस से कुछ पानी से मिक्स कर लिया है, और ये करते हैं हम किसी मेटालिक कंटेनर में, जिसे हम कहते हैं कैलोरीमीटर। जैसे कॉपर का कैलोरीमीटर होता है, यानी कॉपर का बेस होता है, थिक कॉपर होता है, उसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्यों कहते हैं, फिर वो पढ़ लेना क्या क्यों कहते हैं। बट कैलोरीमीटर एक तरह का वेसल है, और उस वेसल में हम अलग अलग चीजें मिक्स करते हैं, और फिर उसका हम एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालते हैं। अब अगर हमने अलग अलग कैलोरीमीटर यूज किया तो क्या होगा इशू, सबका मुझे स्पेसिफिक हीट चाहिए। कॉपर यूज किया तो कॉपर का चाहिए, ठीक है, और अगर हमने एल्यूमिनियम यूज किया तो उसका चाहिए, स्टील यूज किया तो उसका चाहिए। तो हमने क्या कर रखा है कि कॉपर स्टील इन सबको यूज ना करके उन सारे कैलोरीमीटर का एक वाटर इक्विवेलेंट बना लिया। अब वो होता क्या है समझ लो, कि अगर किसी रैंडम सब्सटेंस को, कोई रैंडम सब्सटेंस ले लो, और तुमने इस रैंडम सब्सटेंस को, तुमने इसे कुछ एनर्जी दिया, रैंडम ऑब्जेक्ट, जनरली कैलोरीमीटर के केस में वो एक वेसल होता है। अब क्या होगा, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कुछ। तो हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू C डेल्टा T, वे C इज द हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट। अब हम क्या करते हैं कि अब चूंकि लैब में हर एक बच्चा आएगा अलग अलग क्लास से, उसी कैलोरीमीटर को उठाएगा और करेगा एक्सपेरिमेंट। तो अगर हमें सेम कैलोरीमीटर को बार बार यूज करना है, और चूंकि लैब में चीजें फिक्स होती हैं कि वही यूज करना है, तो हमने क्या किया कि इतनी एनर्जी को जो हमने इस कैलोरीमीटर को दिया, जिससे टेम्परेचर इतना बढ़ गया, तो बोला कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वी मस्ट टेक सच दैट by giving the same amount of energy it undergoes similar change in temperature, then the amount of water which we need is called the water equivalent of this random object. अब फायदा क्या हो गया, कि वाटर का स्पेसिफिक हीट पहले से पता है, यहाँ क्यों रखेंगे, क्यों लिखेंगे MW/SW डेल्टा टी। अब चूंकि दोनों फॉर्मूला सेम है वैल्यू वाइज, so we can say the C must be equals to MW/SW, और यही कहानी खत्म होती है। कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी का हीट कैपेसिटी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से अगर डिवाइड कर दिया तो जो आंसर आएगा वही होगा वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। बट इससे भी अच्छी बात क्या है कि इन सीजीएस यूनिट SW होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उस केस में तो MW नथिंग इज C। यानी कि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 200 ग्राम है, तो उसका हीट कैपेसिटी 200 कैलोरी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि अगर तुम ग्राम को रिप्लेस करके कैलोरी कैलोरी लिख दो तो उसका हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। अब इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सीधे समझाता हूँ। अगर किसी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट बोल दिया कि वे 1 किलोग्राम है, तो उसका हीट कैपेसिटी 1000 कैलोरी है, खत्म। यानी कि जितना मैं वाटर Yes. इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ उसको तुम ग्राम में बना दो, और ग्राम को हटाकर कैलोरी लिख दो।
अब इसका फायदा क्या है कि कैलकुलेशन में मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कॉपर था कि एल्युमिनियम था कि स्टील था, क्या था। क्योंकि अगर मैं नाम दूंगा तो फिर मुझे अलग से एस चाहिए, एस ऑफ कॉपर, एस ऑफ एल्युमिनियम, एस ऑफ स्टील, एस ऑफ टिन, एस ऑफ फलाना, एस ऑफ ढिमका, तो हमें वो नहीं करना। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, एक डेटा शीट की तरह बना के लैब में पहले से रखा होता है। आप उठ वो शीट खोलो और पढ़ लो कि ये वाला बर्तन यूज करोगे तो ये इसका वाटर इक्विवेलेंट 200 है, इसका 150 है, इसका 50 है, इसका 60 है ग्राम। तो तुम्हारा फायदा हो गया ना उससे। Yes, sir. अगर किसी का वाटर इक्विवेलेंट बहुत ही कम है लेकिन उसका हीट कैपेसिटी भी बहुत कम है, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज करना आसान है। नहीं समझे? समझा सर। तो जो कैलोरीमीटर बनाए जाते हैं उसमें होता क्या है, ये एक थिक मेटालिक वेसल होता है जिसको हम इंसुलेशन से ढक देते हैं, यानी कवर कर देते हैं ताकि हीट बाहर नहीं जाए। अब हमें क्या लगता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमने आइस डाला, पानी डाला, स्टीम डाल दिया, मैक्सिमम ही डाल सकते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस, तीन चीज साथ डाल दिया हम लोग वर्स्ट केस में। या कभी कभी लोग पानी में पानी डालते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, पानी वन, पानी टू, लिक्विड वन, लिक्विड टू। या कुछ लोग पानी में आइस डालते हैं, है ना, जैसे तुम्हारे डैड डालते होंगे पानी में आइस, कलरफुल पानी विद आइस, यू नो दिस। ऐसे ड्राई स्टेट है तो नहीं पता है, लेकिन बाकी स्टेट में होता है। ठीक है। एनीवे, आइडिया क्या है कि व्हेन यू मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस, eventually it has to attain one temperature. Now the mixing will be done in a vessel, so energy is not only, exchange between the mixture, rather the vessel in which you're mixing is also participating in the energy exchange. तो कैलकुलेशन में हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ पैसे तो वो भी लेगा। बोला कि भैया आप फ्री में हमारे मिक्स नहीं कर सकते, आई ऑल्सो टेक एनर्जी। तो मिक्सिंग में टेम्परेचर तीनों का इक्विलिब्रियम आता है, जो सामान तो मिक्स किया उसका, यानी कि मान लो आइस है, वाटर है, उसका टेम्परेचर एक हो जाएगा, और वही टेम्परेचर उस कैलोरी मीटर का भी हो जाएगा। दे कैन नॉट स्टे एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है। Yes, sir. तो अब फायदा क्या है कि चूंकि मोस्टली तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आइस होगा, वाटर होगा, यही सब होता है। अगर मैंने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया तो तुम्हें उसको कैलोरीमीटर नहीं मानना है, ऐसे मानना है कि उतना एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया, और फिर तुम कैलोरीमीटर को भूल जाओ, यानी वो पैसा अब नहीं ले रहा है तो तुमने पानी उसके इक्विवेलेंट पानी अज्यूम कर लिया। तो कैलोरीमीटर इज लाइक द सेंट। अब वो साधु परमात्मा बन चुका है, उससे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। बोले कि भाई तुम लोग आपस में मिक्स करो और तुम लोग आपस में पैसे बांट लो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं साधु बन चुका हूँ, क्योंकि मेरा इक्विवेलेंट तुमने ले लिया। नहीं समझे? तो बाय टेकिंग वाटर इक्विवेलेंट यू फ्री द vessel or calorimeter from all the energy exchange process। नहीं समझे? समझा सर। अब ये आगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। बट फिलहाल एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, वाटर इक्विवेलेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। सो So बोल the mass of water which requires the equivalent amount of heat for uh, raising substance's temperature by 1 degree. हाँ, तुम कह सकते हो कि वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी इन कैलोरी। Hmm. मैंने किसी का वाटर इक्विवेलेंट अगर तुम्हें बोला कि 100 ग्राम है तो 100 कैलोरी उसकी हीट कैपेसिटी होती है। तो डेफिनेशन तो ये है कि इसको ऐसे लिखता हूँ, इट इज वाटर इक्विवेलेंट
in grams is the equivalent heat capacity in calorie. ठीक है, ये सिंपल डिफिनेशन रखते हैं। बाकी फॉर्मूला तो यहाँ लिख दिया ना। तो C इक्वल्स टू एम डब्ल्यू इन CGS और कैलोरी CGS में माना आता है, SI में नहीं। SI में जूल होता है। ठीक है, ठीक ही होना चाहिए। जीरो। अरे भूल भी गया तो ये दो फॉर्मूला लिख दो, कर दो इक्वेट। इसमें क्या है, हाँ। इतना क्या इमोशनल होना है। ठीक है, अब यस सर। एक आखिरी ग्राफ दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज। इसको मान लो कि ये एक एक्सिस है, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर एक्सिस, और ये एक एक्सिस होते हैं हीट सप्लाइड एक्सिस। और हमारा सैंपल क्या है, तो हमने सैंपल में लिया है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस एट STP, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है उस पर लिया मैंने आइस। ठीक है, एसटीपी बोलोगे सर तो -10 डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाएगा? अरे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर बोलो, STP मत बोलो। हाँ 180 है। नहीं नहीं, मतलब कि हाँ चलो ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ना सर, तो ठीक हटा दो। ठीक है, हटा दो। मैं लिख ही देता हूँ, इससे अच्छा है कि प्रेशर 180 है, लिख लो सर बेटर। हाँ इतना क्या। अब आइस को हम जब हीट देंगे तो क्या होगा, आइस पानी नहीं बन सकता, जो पानी बनने का भी एक टेम्परेचर होता है, यानी कि फेज चेंज ओनली अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर विच इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर 180 में, तो मेल्टिंग पॉइंट तो 0 पे फिक्स हो चुका है। तो मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा पहले वो। तो मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर चेंज होगा एज इफ कि वो नॉर्मल हीट लेके टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो अगर मैंने ग्राफ यहाँ से ड्रॉ किया, -10 को यहाँ माना, तो हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा पहले, और टेम्परेचर बढ़ेगा यूनिफॉर्मली। तो यस हीट सर। हीट हीट देते जाओ और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब तक टेम्परेचर 0 नहीं पहुंचेगा, तब तक फेज चेंज का भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर, यानी कि ओरिजिन से लेकर, ये ए मान लेते हैं, ए पॉइंट, OA का जो लेंथ है वो हीट सप्लाइड है। और ये हीट क्या करेगा, ये टेम्परेचर चेंज करेगा -10 से 0 तक। ठीक है, बट 0 होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस। अब टेम्परेचर, अगर तुमने अब एनर्जी सप्लाई किया तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं सकता, अब फेज चेंज होगा। अब एनर्जी तुम देते चले जाओ और तुम क्या देखोगे कि ग्राफ बिल्कुल ऊपर उठना बंद हो, फ्लैट हो जाओ, फ्लैट। लेकिन कितना देंगे, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो जितना ग्राम लिया उतना इंटू 80 कर दो, उतना कैलोरी देना पड़ेगा। हम्म। तो अगर m ग्राम आइस है
तो 80 m 80 एनर्जी m. खा जाएगा ये, यानी 80 m खाने तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। अब सारा आइस मेल्ट हो गया बी पे, मान लो, यानी कि जितना खाना तक खा चुका है, फेस चेंज हो चुका है, बी पे क्या मिलेगा? Liquid water. लिक्विड वाटर एट 0। ए पे क्या मिलेगा? आइस एट 0। Ice at 0. ठीक है, अब बी पे जब पानी बन चुका है, 0 पे पूरा आइस हो चुका है, अब पैसे देंगे तो क्या होगा? Uh, Heat up होगा अब up to 100 degrees Celsius. बट इसका स्लोप क्या होगा? Less or क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है और आइस और स्टीम का 0.5 होता है, यानी अब टेम्परेचर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, जल्दी नहीं। और कब तक बढ़ेगा? जब तक ये 100 अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। यानी कि जैसे ही तुमने टच किया 100, वैसे ही टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है अपने आम कंडीशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है फिनोमेना? फेज चेंज होता है। लेकिन अब पैसे बहुत चाहिए, कितना? 1 ग्राम के लिए 540 चाहिए, m ग्राम के लिए 540 m चाहिए। तो ये लाइन थोड़ा लंबा होगा, नहीं? पैसे ज्यादा चाहिए ना उसको तो। yes. मतलब कि सी पॉइंट पे क्या मिलेगा? वाटर एट 100, राइट? Hmm. और बीडी क्या देगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 ऑफ वाटर। मैं बात कर रहा हूँ बीडी का। Yes sir. ए बी सी डी। अब ई पे क्या जगह है? ई पे मिलेगा तुम्हें Vapor at वेपर एट 100। 100 degrees. Yes. और अगर हम इसको और एक्सटेंड करके नीचे ड्रॉ कर दे, एफ, तो डीएफ क्या देगा? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द एंटायर। Latent heat of vaporization. हाँ, नहीं, हाँ, ये जगह लेटेंट नहीं हीट। latent heat नहीं होगा. नहीं, लेटेंट हीट नहीं होगा वो। हाँ. लेटेंट हीट नहीं होगा। latent heat times mass आएगा ना सर. नहीं, वो तो हो गया स्पेसिफिक, हो गया वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो गया। अगर तुमने केवल लेटेंट अच्छा हीट, हाँ तो हाँ. इसके बाद अगर एनर्जी दिया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और heat. और चूंकि इसका 0.5 होता है तो इसका स्लोप होगा सेम एज अर्लियर। Right sir. यहाँ पे जो मिलेगा, ई एफ जी यू बोलो, इसे कहते हैं हम लोग सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, स्टीम गर्म करने की जरूरत नहीं है। बट हम सुपर हीटेड स्टीम भी ड्राइव करते हैं फॉर सम अदर पर्पस। जैसे कि हम लोग इसका यूज करते हैं टू स्टरलाइज लाइनन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो एक सुपर हीटेड स्टीम वाले चैम्बर में रख देते हैं हम लोग लाइनर को, और उसमें हम कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे वो स्टरलाइज होता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया वाला मर जाता है। दे कैन नॉट टॉलरेट सच हाई टेम्परेचर। जो टेम्परेचर सेंसिटिव बैक्टीरिया है या फंगस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो भी एक पर्पस है। इसके अलावा लाखों पर्पस है जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तुम सर्च करो यूज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन, ठीक है, डिफरेंट। कॉफी वगैरह बनाने में आई थिंक होता है ना सर. हाँ, कॉफी में भी होता है, क्योंकि उससे भी कुछ फ्लेवर्स आते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं निकलता है, लेकिन एट सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद ही वो फ्लेवर आ पाता है। तो हो सकता है कि ब्रूइंग में इसका यूज होता हो, टेक्निक में। अब ब्रू करते हैं तो उसमें यूज करते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है, अब पूरा खाना पीना बनाओगे तो इसमें यूज होगा। तो दम बिरयानी में यूज करते हैं। सुपर हीट स्टीम है। दम बिरयानी क्या होता है पता ही नहीं ओम को। होता है, कुछ यूज होता है, गुजरात में नहीं होता है, बाकी जगह होता है। ठीक हल्के में ले रखा है सर मुझे. है। तो इसमें तुम्हें करना क्या है कि
ऐसे नोट्स में सब बना हुआ है, तुम नोट्स खोलोगे तो तुम्हें सब दिख जाएगा, डायग्राम बने हुए, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो खोल के आप देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल ऐसा है नहीं। अब हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चंस ही करना होते हैं, थियरी तो कुछ है नहीं, थियरी खत्म होगी, इतनी थियरी, और 5-6 क्वेश्चन, 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, 3-4 क्वेश्चन है। हाँ, तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन